Hello friends, today we will learn some basic rules in English usage and grammar. मतलब इंग्लिश के कुछ जो मूल नियम कायदे हैं वो हम सीखेंगे. I would like to point out that these rules will not only serve you in RIE, CEE but in other exams also which demand English proficiency such as NDA, CDS, etc. सिर्फ RIE, CEE में काम नहीं आएंगे ये नियम. ये आपके दूसरे जो एग्जाम्स हैं जैसे CDS हुआ, NDA हुआ, उनमें भी उतने ही यूजफुल हैं क्योंकि वहां भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखी जाती है. अगेन प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड because a lot of questions, and I mean a whole lot of questions, can be solved using these rules. आप वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे. इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशंस बटन. नए हैं तो नोटिफिकेशन बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेज ऑफ ए एंड सम एंड द. Before we begin, let's know that a and n are known as indefinite articles and the is known as definite article. And also there is one more thing, countable. ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सके, the things that we can count. For example, coins and books, etc. And there are uncountable things which we cannot count. We can measure them, but we cannot count them. हम उन्हें नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते. जैसे दूध, एक दूध, दो दूध, तीन दूध नहीं होता है. 1 लीटर दूध होता है, 2 लीटर दूध होता है. दूध इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल. अब हम शुरू करते हैं नियम कायदों के साथ. नाउ वी विल बिगिन विद द रूल्स. So section 1, a and some and the. So we begin. Things we cannot count have no indefinite article and usually no plural. ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके लिए indefinite article जैसे कि an का इस्तेमाल नहीं होता और उनके लिए प्लूरल बहुवचन का भी इस्तेमाल नहीं होगा. For example, things we cannot count. For example, ink cannot be counted. स्याही को गिना नहीं जा सकता. एक स्याही, 2 स्याही नहीं होती. Water cannot be counted. You cannot say 1 water, 2 water, 3 water. You say 1 liter of water, 2 liter of water. It can be measured but not counted. Same goes for milk and same goes for wood. So there is no plural for them. And I would like to remind you, for example, in some places you might read the word waters and you might also see the word woods, but those have a complete different meaning. For example, waters means sea and woods will mean forest. So they are not the same in meaning as water and woods. Rule number 2. Uncountable nouns and countables in the plural are preceded by some when a certain quantity or number is implied. Uncountable nouns हैं या फिर countable nouns हैं जो कि plural में है. अगर uncountable nouns हैं तो उनका plural होगा ही नहीं, और countable nouns यदि plural में हैं तो उनके पीछे हम some लगा देते हैं जब हम थोड़ी सी क्वांटिटी का डिमांड कर रहे हैं. Uncountable nouns and countables in the plural are preceded by some when a certain quantities or number is implied. Example, milk is good for health in general. We are talking about milk in general. We are not asking about a fixed quantity of milk or a little quantity of milk. But when we talk in quantity, for example, give me some milk, then we have to use a certain quantity, so we will put some here. जब हम जनरली दूध के बारे में बात कर रहे हैं, दूध सेहत के लिए अच्छा है, तब हम दूध के पीछे सम नहीं लगाते, मतलब थोड़ा नहीं लगाते. जब हमको थोड़ी मात्रा में चाहिए तो हम मांगेंगे इस तरह
मुझे थोड़ा दूध दीजिए. Rule number 3. Rule number 3. Countable nouns take a or an. A in case of a countable giving out a consonant sound and an in case of a countable giving out a vowel sound. जो काउंटेबल नाउन्स हैं, ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें गिना जा सकता है, उनके पीछे या तो ए लगेगा या एन लगेगा. ए ऐसे केस में लगेगा जब उनके पीछे कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन ऐसे केस में लगेगा जिनमें वोवल साउंड हो. अब मैं कॉन्सोनेंट और वोवल बता देता हूं. पहले ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल्स होते हैं. ये 5 वोवल्स हैं, और इनके अलावा जो बाकी 26 अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट में से अगर इन 5 को हटा दें तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. और यहां पे एक और बात ध्यान रखने लायक है. वन मोर थिंग, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साउंड. फॉर एग्जाम्पल, एच इज नॉट वन ऑफ वोवल्स. ए, ई, आई, ओ, यू, देयर इज नो एच हियर, but there is an H here. But we never say a honest person. We always say an honest person. यहां पे H नहीं है इनमें, इन 5 अक्षरों में H का यूज नहीं होता है, बट यहां पे N का उपयोग फिर भी होगा. हमेशा an honest person लिखा जाता है. क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट में ओ की साउंड है, ओ की साउंड है, एच की नहीं. हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है. सिमिलरली, यूनिवर्सिटी, इसमें वोवल आ रहा है, लेकिन यहां पे एन का यूज नहीं होता, यहां पे ए का यूज होता है. क्यों? यूनिवर्सिटी साउंड वाई का आता है, जो कि कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट के लिए ए यूनिवर्सिटी, वोवल के लिए एन ऑनेस्ट पर्सन. साउंड देखिए, अगर इन 5 साउंड में से कोई आता है तो एन लगाइए. यदि इन 5 साउंड में से कोई सा नहीं आता है तो ए लगाइए. इफ यू फाइंड द वर्ड to have any of these 5 sounds, I repeat, sounds, phonetics. If you find the word to have any of these 5 sounds, A, E, I, O, U, use N. If you don't, then use A. Now let's get back to the rules. कुछ examples देख लेते हैं. He has a book in his hands. A book. ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हुआ. यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड नहीं है, सिर्फ बी की साउंड है. अ बुक, इसलिए ए यूज हुआ. देयर वॉज नो वोवल साउंड हियर, इट वॉज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए वॉज यूज्ड. शी बॉट एन अम्ब्रेला फॉर 5 shillings. अम्ब्रेला, अ, इट्स अ वोवल साउंड. ही इज अ one-eyed man. It has a vowel as a letter. यहां पे vowel आ रहा है लिखित में, but one. The sound is consonant, so it will have a here. यहां पे one में व की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ आएगा. She is an honest and sincere lady. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, like I said before, the sound is o here. Honest, not honest, honest. So we use N here. Next we go for he met an MP yesterday. Now M is a consonant, but M, A, E, I, O, U, in the beginning there is an a sound here, so we will use N. She is a BA. B has a consonant sound, so A will be used. Now we go to the rule number 4. A or N should be placed between half
and a noun, and after many, what, and such. In the book it has been written opportunity, but it is actually such. A और N को हाफ और एक संज्ञा के बीच में रखा जाना चाहिए और मैनी, वॉट और सच जैसे शब्दों के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। दे केम आफ्टर हाफ एन आवर। हाफ आ गया, नाउन और उनके बीच में एन। देयर इज हाफ, देयर इज अ नाउन एंड इन बिटवीन देयर इज एन। दे केम आफ्टर हाफ एन आवर। A or N should be placed between half and a noun. Between half and a noun. Again, she gave me half a dozen pencils. Half, noun, A. हाफ और नाउन के बीच में अ का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद मैनी, वॉट और सच के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर मैनी, वॉट एंड सच, ए और एन शुड बी यूज्ड। Here, many a man is born in abject poverty. Many के बाद a का यूज हो रहा है। फोर्थ में what an opportunity you have missed. After what, an is being used. Such an opportunity does not come often. After such, an is being used. Such के बाद an का यूज हो रहा है। तो हम ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने वाला है कि हाफ और नाउन के बीच में अ और एन का इस्तेमाल होगा। मैनी, वॉट एंड सच के जस्ट बाद एन और ए का इस्तेमाल होगा। देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, ओनली टू रिमेंबर दैट बिटवीन हाफ एंड नाउन यू विल पुट एन ए और एन। जस्ट आफ्टर मैनी, वॉट एंड सच यू कैन पुट ए एंड एन। Now we go to rule number 5. When two subjects or articles naturally go together and are thought of as a unit, it is not necessary to repeat the indefinite article with the second noun. जैसे कोई दो चीजें हैं जिनका उल्लेख साथ में ही होता है, जैसे कप के साथ प्लेट, तो आप अ या फिर एन उनके आगे अलग अलग ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको। ही वॉज रेडी विद अ कप एंड अ सॉसर। ही वॉज रेडी विद अ कप एंड अ सॉसर भी लिख सकते हैं। ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये आमतौर पर समझ ही लिया जाता है कि इसी प्रकार से बात हो रही है। आते हैं रूल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिवली एंड ऑल्सो विद अ पर्सन्स नेम टू इंडिकेट दैट द पर्सन इज परहैप्स नोन टू द पर्सन, अननोन टू द पर्सन एड्रेस्ड। He visits the town once in a blue moon. He can walk 6 miles an hour. यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिवली का मतलब है कि आप कई शब्दों के ऊपर भी ए और एन का इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जिन्हें शायद आप जानते ना हो। जैसे कोई की जगह ही विजिट्स द टाउन वंस इन अ ब्लू मून, वह कभी कभार एक बार शहर में आता है। ही कैन वॉक 6 miles an hour। अब देखते हैं अननोन वाले एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, शी थिंक्स शी इज अ मार्लिन मोनरो। शी थिंक्स शी इज अ मार्लिन मोनरो, जब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है किसी और से। अ मिस्टर जॉन इज एट द डोर।
यहां पे क्या इंप्लाइड है कि वो शायद आप उसे जानते नहीं. इट्स इंप्लाइड दैट मे बी द पर्सन इज अननोन. विल गो टू रूल नंबर 7. आर्टिकल द शुड बी यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग: rivers, mountains, monuments, great books, oceans, islands, descriptive names of countries, newspapers, directions, unique things, etc. द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, कोई ऐतिहासिक इमारतों के नाम, कोई महान किताबों के नाम, महासागरों के नाम, द्वीपों के नाम, या फिर देशों के नाम, अखबारों के नाम, दिशाओं के नाम, और जो यूनिक चीजें होती हैं, जैसे अद्वितीय चीजें होती हैं, उनके लिए. सो वी विल सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. अ फ्लाइंग सॉसर वॉज सीन एनसर्कलिंग ओवर द एटलांटिक. एटलांटिक महासागर एक ही है. इट्स यूनिक, अद्वितीय है. दूसरा एटलांटिक है ही नहीं, एक ही है. तो उसके लिए द का इस्तेमाल होता है. आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. द थेम्स discharges several crores of cusecs of water in the sea every year. अब the Thames नदी का नाम है. It's the name of a river that flows through London. Now there is only one Thames. There is only one London. Thames is unique. And this is the name of a river, so we will use the before its name. The Indian Express, the name of a newspaper, so the will be used before it. The sun, the moon, the earth, the Taj Mahal, the USA, the USSR. This you will have to remember. इसमें समझने लायक कुछ नहीं है. आपको ये देखना होगा कि नदियां, पहाड़, इमारतें, किताबें, महासागर, आइलैंड्स, देशों के नाम, अखबार, दिशाएं, और जो अद्वितीय चीजें हैं उनके नामों के आगे द लगेगा. यू कीप देम दीज थिंग्स इन माइंड एंड यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वी गो टू रूल नंबर 8. द डेफिनेट आर्टिकल the should be used with the superlative degrees and comparative degrees when with two nouns, proper and common, naturally going together and spoken of as a unit. Superlative degree होती है, जैसे the best, good, better, best. यहां पे better comparative degree है और best superlative degree है. तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें तो हमेशा द आएगा. द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल. और जब आप दो कंपैरेटिव डिग्री का साथ में यूज करें तो भी द आएगा. द बेटर यू आर, द बेटर यू विल फील. 2 बार द का यूज होगा. आप देख लेते हैं एग्जाम्पल. सो व्हेन वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू यूज द. And when we are using two comparative degrees in the same sentence, we will use the again. And when we are using two nouns which are going together, which are understood to be going together, then also we will use the. जब ऐसी दो संज्ञाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये साथ में ही बोली जाती हैं, तो भी हम द का इस्तेमाल करेंगे. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. She is the best student of the college. The best, superlative degree. The more you eat, the more hungry you feel. The more का मतलब है comparative degree. Most is superlative degree, more is comparative degree. The more you eat, the more hungry you feel. Since more has been used 2 times, we will use the. क्योंकि more का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, इसलिए हम the का इस्तेमाल करेंगे. द आगरा यूनिवर्सिटी. आगरा भी नाउन है, यूनिवर्सिटी भी नाउन है. अब दोनों नाउन साथ में आते हैं और हमें पता है, जनरल आइडिया है, वी हैव जनरल आइडिया दैट दीज टू थिंग्स गो टुगेदर. ये दोनों चीजें साथ में क्या मतलब रखती हैं, इसलिए द का इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 9, रूल नंबर 9. Rule number 9. The is used as a weak form of this, these, that, those.
applied to persons, things, events, etc. already referred to or being discussed. जैसे द का इस्तेमाल दिस, दीज, दैट, दोज की जगह हो सकता है जब आप ऐसे लोगों, चीजों या घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में पहले से डिस्कशन हो चुका होता है. इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पिताजी आपसे कहते हैं कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, तो आप अपने ही घर का दरवाजा लगाएंगे ना, पड़ोसी का तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको दरवाजे का पहले से ही ज्ञान है कि हमारे घर में एक दरवाजा है और अगर पिताजी ने दरवाजा लगाने को कहा है तो हमारे दरवाजे की बात कर रहे हैं. वैसे ही अगर किसी पैराग्राफ में पहले ही किसी चीज का वर्णन हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्यूटिफुल रिवर फ्लोइंग नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक नदी है, तो फिर उसके बाद अगर अगला सेंटेंस है विल यू हैव अ वॉक बाय द रिवर, क्योंकि हम ये अंडरस्टूड है, इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रिवर ओनली, वी हैव नॉट चेंज्ड द रिवर. यह समझ में आता है कि हम उसी नदी की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी नदी की नहीं. यही एग्जाम्पल्स हैं. द का इस्तेमाल दिस, दीज, दैट, दोज की जगह हो सकता है यदि उनका उल्लेख पहले से ही हो चुका है सेंटेंस में. अ बॉय एंड अ गर्ल वेंट अप द हिल, द बॉय, द सेम बॉय हु वेंट अप द हिल, द बॉय केम डाउन, द गर्ल which went up the hill, the girl fell down. Rule number 10. It is also used to indicate vague time and part of the day. वेग जो स्पष्ट ना हो, वेग जो स्पष्ट ना हो, हिंदी वाला वेग नहीं. इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट वेग टाइम एंड पार्ट ऑफ द डे. फॉर एग्जाम्पल सुबह, सिर्फ सुबह बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि सुबह के 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, क्या बजा है, नहीं, सिर्फ सुबह, ओनली द मॉर्निंग, ओनली द मॉर्निंग विल बी यूज्ड. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. He came in the evening. At what time in the evening? It is not specified. Like I said, it is vague. अस्पष्ट है. शाम को कितनी बजे आया नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा he came in the evening. Similarly, they always play in the morning. He will have lunch in the afternoon. दोपहर में कितने बजे नहीं बता रखा, सुबह कितनी बजे खेलेगा नहीं बता रखा, सिर्फ सुबह बता रखा है. सो द विल बी यूज्ड. नाउ वी गो टू रूल नंबर 11. द डेफिनेट आर्टिकल द शुड नॉट बी यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग: गेम्स, डिजीजेस, कलर्स, डेज, मंथ्स, एक्सेट्रा. जो द है, द का उपयोग खेलों के नाम में, बीमारियों के नाम में, रंगों के नाम में, दिनों के नाम में और महीनों के नाम में नहीं होना चाहिए. ये आप याद रखेंगे, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने वाली बात है कि खेल, बीमारी, रंग, दिन और महीनों में द का इस्तेमाल नहीं होगा. वी विल हैव टू रिमेंबर दैट इन द नेम ऑफ गेम्स, डिजीजेस, कलर्स, डेज एंड मंथ्स द विल नॉट बी यूज्ड. नाउ we will see the examples. Examples. First, he plays hockey in the evening. यहां पे the hockey यूज नहीं कर सकते. He plays hockey in the evening. We will not say he plays the hockey in the evening. No, he plays hockey in the evening. I am suffering from typhoid. The will not be used. His shirt is dyed in green. Not his shirt is dyed in the green. His shirt is dyed in the green का यूज नहीं होगा. द यहां पे नहीं आएगा क्योंकि ये रंग का नाम है, ये बीमारी का नाम है और ये गेम का नाम है, ये दिन का नाम है और ये महीने का नाम है. इनके पीछे हम द नहीं लगाएंगे. दे केम ऑन मंडे लास्ट. दे मेट अस इन जनवरी लास्ट. ठीक है. नाउ वी विल बिगिन विद सेक्शन 2. नाउन्स, प्रोनाउंस, पोजेसिव्स and self.
Section 2, nouns, pronouns, possessives and self. We will begin with them.